All right. Welcome back, my regular viewers, listeners, and watchers. And of course, if you happen to be here for the very first time, welcome. Before I go any further, my name is Rahul George, India's premier eye hypnosis life healer coach, and your personal guide. Now, for those of you who've been here showing up regularly through this year of 2024, today we are at a really important juncture of our podcast. This is the iHypnosis Life coaching journeys, and we've had some truly amazing guests. And I have a really amazing human being who has made the time to be here and to share his life story and the twists and turns of what it is to discover more of who you are and what you're meant to share with the world. So I'm talking about somebody who I met a couple of years ago, and in a sense, Kapil Bhai. This is, of course, your cue. So Kapil Bhai is definitely somebody who is more from season one, where I was talking about and interviewing people who I've known, who I've met in different circumstances, people maybe I've worked with or people who've been on the journey with me. Now, of course, we are officially in season two, where there are people who I haven't met ever before who are on the show, but you were meant to be here at this point to kind of pepper season two beautifully. So, with that, firstly, welcome Kapil Bhai. Yeah, thanks, Rahul. And I'm actually honored to be here because I've always loved talking to you, and I never, hesitate to, say this every time we meet. Nice. So it's lovely to be here. Awesome. And just to put this into context, like I said, um, you know, I've been on this journey now for quite a number of years. And 2019, 2020 has definitely a special place in and a special part in my journey when I started to discover something called digital marketing. Of course, for me, I stumbled into it in 2019 before the world had even sort of woken up to the idea that there is something called digital marketing. Unless you were hardcore into it, most of us were oblivious of it. And then, of course, 2020 happened, and we've all sort of been on a spin ever since, and discovering and rediscovering parts of us on that journey. When I sort of made one of my re-entries back into creation of content and into finding more of what is my life story that is of value to others. That is actually when I met Kapil, and I fondly refer to him as Kapil Bhai, and ever since. And so we've been on many conversations over a period of time, and it's so beautiful to see his journey, and that's what I am. I'd love to also hear in his own words, and you get to share it here like this on our pod, so that when people do make that journey, they will definitely be inspired by your story and realize that this life that we've chosen, whether it is to be a healer or whether it is to be a coach, or as I fondly refer to it, to be a healer coach, um, it's it's a really powerful journey. So with that, maybe you can start at the beginning, which is where you are today. Give people a sense of uh, where you are today, what you do today, and then we'll go on a journey together. So Okay, that's sure, the setup. sure. Okay. See, right now, as you know, I'm a career consultant, and my expertise lies in the study abroad. Mm, So actually, that is my mission, actually, to help students get admission in the best universities of the world, mm, and of course, build happy and successful careers. nice. Because happiness is what is really important for Mm, me. And down the line, yes, I've been learning a few tricks of the trade, and so that I can help my students. I mm, always call them my students, right? Because that is, I love to help them, mm, right? Whatever I'm doing in the online mm, space, though I've been connected with internet since the time it got
into India, but never used it that way, right? So it was only for the browsing purpose or the data collection purpose, but never to reach out to people. Mm. But slowly I gained that expertise also. So this is the time of constantly learning. So I am learning, and I always make my students also take that decision to learn Nice. consistently. That is the basically Beautiful. idea of growing. Beautiful. S- Yeah. right. So that, So that is I think that's a beautiful place to start. In the sense that now we have a sense of what you do today, and there's a fondness in when you refer to your work. It's not just a job, it's not just something that you do, but you really truly connect to it. And I know there's a story to how you reached here. So yeah. जैसे बोलते हैं ना, यहाँ से शुरुआत करते हैं. Let's go back in time to maybe some of your earliest memories of um, it's like how did you get here? Did you know as a child? Did you know as a teenager? Like at what point did you kind of see flashes of कि हाँ, आगे जाके मैं बड़ा होके ये बनूंगा, right? और ये करूंगा. Like Hmm. what's that story like? See, okay. See, if I talk about, I have to go back like 30 years back Mm-hmm. when I started. Mm. So even in those days, I never met any career counselor as Mm. such, right? Mm. So maybe some, you can say the elite class had access to them, Mm. but not people like me. We were Mm. like from the middle class, right? Mm. So the relatives, the parents, the friends, they were there to guide. I can't say it was a good guidance or a bad guidance, Mm. but yes, destiny उस समय Mm. वो ही करा रही थी मुझसे. Right. But yes, I can actually, you know, feel good about my dad कि उन्होंने मुझे Mm. कभी जो मैं करना चाहता हूँ वो करने से नहीं रोका. He always trusted me कि अच्छा तुझे जो करना है कर, बस Mm. बता देना क्या करने वाला Wow. है, right? Wow. So that is so nice of him. और I entered into the education sector. I Mm. started teaching. ठीक है. Just to और pause you as here, my dad, what हाँ, inspired you to, because not most people do not like first hand, they don't say हाँ मुझे educationist बनना है या teacher बनना है, like that's a there's a story behind that. What see, basically what I was studying, mm, तो मैं अकाउंट्स बैकग्राउंड को बिलोंग कर रहा था. हाँ, ठीक है ना. बट इवन इन माय स्कूल डेज mm, आई हैड स्टार्टेड हेल्पिंग माय फ्रेंड्स. ठीक है. तो थोड़ा सा क्योंकि ये कह सकते हो कि शौक वहाँ से लगा mm, पढ़ने का. mm, फिर जब कॉलेज में आ गए तो लगा कि कुछ पॉकेट मनी के लिए करना चाहिए. mm, ठीक है. तो आई स्टार्टेड टीचिंग पार्ट टाइम. nice. देन इवेंचुअली आई टुक अप अ जॉब. जब जॉब कर रहा था, एंड आई वाज एन ईडीपी मैनेजर इन अ मल्टीनेशनल Mm, कंपनी इन दोज डेज. mm, तो दैट वाज अ ग्रेट जॉब. बट मेरे को मन नहीं लगा. mm. And EDP is आई what? वाज बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, तो Okay. ईडीपी मैनेजर. Wow. तो अब उसमें आई वाज बिकॉज इतना बिजी हो गया था कि आई वाज मिसिंग ऑन कि अब यार मैं Mm, पढ़ा नहीं पा रहा. तो wow. वंस आई टॉक टू माय डैड कि मन नहीं लग रहा, मुझे लगता है कि मैं टीचिंग ही एंजॉय कर रहा हूँ. Wow. तो ही वाज लाइक यार इतनी अच्छी जॉब छोड़ के तुम करना चाहते हो. बट एज लक वुड हैव इट, Mm, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने कि और मैंने वो जॉब छोड़ दी और केम फुल टाइम इनटू टीचिंग. एंड देन आई ओपन माय कोचिंग mm, इंस्टीट्यूट एंड ऑल. तो इस तरह से द गोइंग वाज गुड. आई वाज एंजॉयिंग दैट क्योंकि अच्छा लग रहा था. mm, तो जैसे लोग कहते हैं ना कि फॉलो योर पैशन, mm. बट आई वुड से इट इज एन इनकम्प्लीट Yes. स्टेटमेंट. Thank you for saying that. क्योंकि Yes. सिर्फ पैशन से बात नहीं बनती. इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय हार्ड वर्क एंड Mm, कंसिस्टेंसी इन योर वर्क. ओनली पैशन विल नॉट mm. टेक यू एनीवेयर. ठीक है ना. Yeah. तो पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दैट Mm, कि इसमें
आपका हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी मस्ट बी देयर, Yes. दैट इज वेरी Beautiful. इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? और ये बात भी सच है कि मैं आज अगर करियर कंसल्टेंट हूं तो द क्रेडिट गोज टू माय स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि मैं उनसे बात करना मुझे अच्छा लगता था, आई एंजॉयड। और फिर जब वो उनसे बॉन्ड बन जाता था तो दे यूज टू शेयर देयर स्ट्रगल्स। ठीक है ना? कि वो कुछ करना चाहते हैं, पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं मिल रही, या समझ नहीं आ रहा कैसे आगे किया जाए। सो दैट वाज द टाइम जब मुझे लगा कि मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है ना? तो बस वहां से मेरा उस पे क्यूरियोसिटी और बढ़ी। आई स्टार्टेड सर्चिंग, और थैंक्स टू इंटरनेट, उसी जमाने में इंटरनेट भी आ गया। एंड तो बस इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते करते, बच्चों की हेल्प करते Beautiful. करते, और पता ही नहीं चला व्हेन आई बिकेम अ ब्रिज बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स। Beautiful. Just for reference, this was around what time? What year would this be? आई वुड से अराउंड 96 97। Wow. Oh, that's like very early 96 97 मतलब कि हाँ, इंटरनेट है इंडिया में तो जस्ट केम। 98 हाँ, 99 तकरीबन was where नहीं, 95 में आ गया था इंटरनेट। ठीक है ना? तो बट आई वॉज अ गुड रीडर, तो इंटरनेट से पहले मैं करियर मैगजीन या हाँ न्यूज़पेपर्स yes में जहां भी कुछ पढ़ने को मिल जाए, आई यूज टू गैदर दैट इंफॉर्मेशन, क्योंकि wow. मुझे लगता था कभी ना कोई स्टूडेंट मुझसे पूछेगा। ठीक है ना? तो बस वो शौक जो है वो बढ़ता जा रहा था। ठीक है ना? तो लेकिन ऐसे कुछ साल गुजरे, ऐसे ही हेल्प करते करते। अब स्टूडेंट्स ने फिर मुझे कहना शुरू किया, सर टीचर्स तो हमें मिल जाते हैं, आप प्लीज इसको ना एज अ प्रोफेशन ही चूज कर क्या लो। बात है ठीक है super ना? तो इट्स अराउंड 15-18 ईयर्स बैक व्हेन आई फाइनली टुक द डिसीजन कि मैं अब प्रोग्रेशन मेरा हो जाना चाहिए। लेकिन मेरा मन टीचिंग छोड़ने को तब भी नहीं था। मैंने, क्योंकि दैट वाज लाइक माय फर्स्ट लव। हाँ ठीक है ना? और मेरे को मजा आता था उसे करने में, क्योंकि आई एम वन पर्सन जिसने पढ़ाने में भी बच्चों को सब्जेक्ट से कभी डराया नहीं। मैं beautiful हमेशा कहता था, कोई नहीं कहता, किसी किताब में नहीं लिखा कि स्टडीज शुड बी बोरिंग। true वी कैन मेक इट फन, वी कैन बिल्कुल मेक इट इंटरेस्टिंग, एंड वी कैन मेक इट इंटरैक्टिव। तो बस वो ही जर्नी आगे बढ़ती गई, बट धीरे धीरे मैं कंसल्टेंसी में ज्यादा बिजी होता गया। ठीक है ना? फिर जब स्टडी अब्रॉड की बात करें तो एक्चुअली व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई वांटेड टू गो अब्रॉड। हाँ ठीक है ना? एमबीए के लिए मेरा एडमिशन भी हो गया, सब कुछ हो गया, बट एज लक वुड हैव इट आई कुडंट गेट द वीजा, तो मैं नहीं जा सका। अब उस समय, एट दैट टाइम, मुझे मालूम ही नहीं था कि देयर आर सर्टन कंसल्टेंट्स जो आपकी हेल्प करते हैं। तो यानी कि अगर मैं ये मानता था कि मैं इतनी चीजों की नॉलेज रखता हूं, स्टिल आई वॉजंट अवेयर कि सच right पीपल, सच प्रोफेशनल्स एग्जिस्ट। wow तो जो लोग मेरी तरह अवेयर नहीं है, उनका क्या होता होगा? right और फिर ये भी था कि एवरीबडी यूज टू फील कि स्टडी अब्रॉड इज ओनली फॉर द रिच। मैं उस मिथ को भी तोड़ना चाहता था nice कि नहीं, देयर आर, जैसे इंडिया में हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस की बात करते हैं, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द फीस। द right सेम अप्लाइज टू अब्रॉड एज वेल। बट अब्रॉड का मुझे लगा इट्स अ होल पैकेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हम अपने बच्चों को बहुत पैम्पर करते हैं। ठीक है? पढ़ाई, अगर एग्जाम्स है तो हम कहते हैं हम घर में कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। बट व्हेन द सेम चाइल्ड गोज अब्रॉड, right वो पढ़ाई भी करता है, वो right खाना भी बनाता है, right वो कपड़े भी धोता है, एवरीथिंग। right सो द होल ट्रांसफॉर्मेशन, द पर्सन बिकम सो रिस्पॉन्सिबल। और प्लस जब आज हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, तो स्टूडेंट्स को भी ग्लोबल सिटीजन्स होना चाहिए, हर कल्चर के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। तो इट एक्चुअली सेल्फ इम्प्रूवमेंट का एक वो भी तरीका है। तो वो
बस इस तरह से मैं आगे बढ़ता गया हम्म, और आज मैं यहाँ पहुंच गया। क्या बात है, सुपर्ब, वाह। Powerful. तो बट यस, आई एम सो सेटिस्फाइड, आई हैव लव्ड एवरी डे ऑफ दिस जर्नी, हम्म, स्टिल लविंग इट। हम्म, कुछ जो नए टूल्स सीखता हूँ हम्म, तो उनको यूज करता हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ, हम्म, क्योंकि जैसे डिजिटल मार्केटिंग तो कुछ साल पहले तक मैं नहीं जानता था, हम्म, बट फिर ओवर द इयर्स पता लगा कि हाँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म, अगर मुझे, मतलब मैं पूरी तरह से मैंने अपने वर्क को ऑनलाइन में ट्रांसफर किया 2018 में, हम्म, वाह, व्हेन आई वांटेड कि भाई हम्म, मुझे पैन इंडिया जाना है, हम्म, if I should be reaching out to maximum students. हम्म, And then 2.5 years back, podcasting happened. हम्म, So, और अभी recently, मतलब I came to know that my podcast is like on the top 10 list in हम्म, India career हम्म, podcast. So really amazing. proud of Yeah, myself. of course. And of course, thanks to my listeners. ठीक है ना? But उसका भी aim यही है कि how to provide value to students. हम्म, कि उनके मन में किसी तरह का कोई डाउट ना रहे। हम्म, सो दैट इज वाई मैंने उसके टॉपिक्स भी या तो करियर्स हैं हम्म, या स्टडी अब्रॉड है या मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लाइफ स्किल्स। हम्म, यूजुअली दे आर नॉट बीइंग टॉट इन स्कूल इवन टुडे प्रॉपरली। बिल्कुल, हम्म, तो वो इंफॉर्मेशन बच्चों को होनी चाहिए, बिकॉज राइट, इट्स नॉट डिग्री कमिंग ऑफ यूज ऑल द टाइम। हम्म, ठीक है ना? हम्म, हम सिर्फ अपने प्रोफेशन में नहीं करेक्ट, होते। तो नाइस, बस वटेवर आई फील कि मैं किसी भी रूप में स्टूडेंट्स को कोई वैल्यू दे सकता हूँ, हम्म, आई ट्राई डूइंग दैट वर्क। हम्म, जैसे इफ यू रिमेम्बर, मैंने एक बार आपको बताया था कि मैं एक वो सुसाइड हेल्पलाइन भी रन करता Tell हूँ, us a story of that. Like, how did that एंड whole पीपल डू, thing come या about? भाई, एक्चुअली न्यूज़पेपर में मैं जब भी पढ़ता था कि भाई किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया, हम्म, और जो रीजंस आते थे, एज अ करियर काउंसलर हम्म, मुझे लगता था कि अगर वो हम हमारे जैसे किसी भी काउंसलर से अगर टच में होते तो दे वुड हैव गॉट द सॉल्यूशंस। हम्म, मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, खास तौर पे एकेडमिक उसमें भी अगर हम बात करें, जिसका कोई ना कोई सॉल्यूशन ना हम्म, हो। और ये बात हम लोग एज प्रोफेशनल्स जानते हैं, आप भी एग्री हम्म, करोगे कि एक साल आगे या पीछे yeah, कोई फर्क नहीं पड़ता, so true. क्योंकि हम किसी करियर में एंटर कर भी जाते हैं तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको इमीडिएट सक्सेस मिलेगी। कई हम्म, बार 2 4 5 साल लग जाते हैं। हम्म, तो अगर कहीं पर कोई दिक्कत आती भी है तो वी कैन ऑलवेज हम्म, ट्वीक आर yeah, वे, true. और फिर उसको इम्प्रूव करके आगे बढ़ सकते हैं। हम्म, मतलब लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, उसको हम्म, स्ट्रेसफुल क्यों बनाना? correct. और ये तो सब लोग कहते हैं ना कि रोज अगर खुशी ही मिलेगी तो फिर उसका भी मजा खत्म हो जाता है। True. तो वो अप्स एंड डाउन्स जो हाँ, हैं, वो जो थोड़े थोड़े होते हैं, हम्म, दैट मेक्स द लाइफ मोर हैपनिंग। ठीक है, और हम फिर उन मोमेंट्स को एंजॉय हम्म, करते हैं कि अच्छा, हम आज अकेले बैठे हैं, कल दोस्त के साथ बैठे हम्म, हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस? yeah, ठीक है yeah. ना? तो वो चीजें होती हैं। Mm. तो So in this स्टूडेंट्स context, नीड टू अंडरस्टैंड। you saw this news happen over and over again, and what did you actually do? तो जब ये हुआ तो फिर अब जैसे सोशल मीडिया पे तो हम बना ही रहे थे, शुरू Hmm. हो चुके थे। Hmm. तो एक दिन मैंने ऐसे ही एक न्यूज़ पढ़ी थी, तो जिसमें एक स्टूडेंट ने Hmm. क्लास 12th के रिजल्ट के बेसिस पर ही उसने द स्टूडेंट कमिटेड सुसाइड। Hmm. और जो रीजंस आए तो मुझे लगा, अरे क्या इस स्टूडेंट ने कभी अपने टीचर्स से बात नहीं की Hmm. या अपने आसपास किसी से नहीं Right. पूछा? क्योंकि ये तो कोई रीजन ही नहीं है। Hmm. देन आई क्रिएटेड अ वीडियो कि भाई ऐसा कुछ मत करो, पूछ लो कम से कम, Hmm. आस्क। Hmm. मैंने इनफैक्ट एक पॉडकास्ट भी बनाया इसी पे, द पावर ऑफ आस्किंग, कि Hmm. हमें वी शुड नॉट हेजिटेट Yeah. टू आस्क। True. क्योंकि सब कुछ
हमें पता हो ये जरूरी नहीं है। हम्म, तो जो पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो पूछो, हम्म, पूछने में कोई शर्म थोड़ी है। नाइस। और द मोस्ट लर्नेड पीपल डू टेक हेल्प फ्रॉम पीपल अराउंड देम, इसमें क्या है? तो रीचिंग आउट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाइस। So let's take a slight detour, right? Uh, 2020 happened, right? Everybody had their own experiences. कोई बहुत बुरे थे, कोई मीडियम थे, कोई sort of बाल बच बच के they were like just about survived through 2020, 21, and then 22 happened. What was your journey? And this is, of course, for people who are maybe they've just, let's say, in the recent times, they've decided to, look at coaching. या दे लाइक ओके, जैसे पुराने ज़माने में बोलते थे साइड हसल, राइट, और व्हाटएवर, एज हम्म अ, ठीक है, मेरे को आई वांट आमदनी के तौर पे, लाइक आई वांट पैरेलल करियर, राइट, सो दैट मे बी इन 1 to 3 years I can sort of transition into that, right? हम्म So question is कि what was your journey, because of course we met in 2022 around August, राइट July August के तकरीबन, हम्म right? हम्म Of course, there are many stories after that of our conversations, but we'll get to that. Uh, but just sort of like, what was your journey like? What was your mindset? कि हाँ ठीक है, I will learn digital marketing, या ये मुझे चाहिए. Like what was that transition like for you? ओके, सी एज आई टोल्ड यू कि मैं 2018 से कोशिश कर रहा था Hmm. पूरी तरह से Hmm. ऑनलाइन में शिफ्ट होना। Correct. बट ऑफ कोर्स इट वाज नॉट सो इजी, क्योंकि Hmm. टूल्स तो पता नहीं थे हाउ टू Correct. ग्रो ऑन Correct. द सोशल मीडिया। Correct. ठीक है ना? बट क्योंकि मैं काउंसलिंग प्लस टीचिंग Hmm. कर रहा था, Hmm. और टीचिंग में क्योंकि ऑनलाइन पे शिफ्ट किया था, तो आई वाज एक्चुअली टीचिंग स्टूडेंट्स अब्रॉड, यूएस Hmm. स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा था। Right. ठीक है, क्योंकि इंडिया में तब भी ये था कि हमें तो ऑफलाइन मोड में ही टीचर Yeah. चाहिए। Correct. ठीक है, Correct. माय एक्सपीरियंस सेड दैट इट इज ऑल टू, जो स्टूडेंट्स एक्चुअली पढ़ना चाहते हैं Hmm. तो उनके लिए ऑनलाइन इज अ गिफ्ट एक्चुअली, Hmm. बून, बिल्कुल. क्योंकि नो टाइम गेट्स वेस्टेड। करेक्ट. ठीक है ना? बट व्हेन द कोविड केम, सबको जबरदस्ती बिल्कुल. आना पड़ा हम्म. ऑनलाइन। हम्म. हम्म. ठीक है ना? तो हम्म. पीपल वर रिलक्टेंट, लेकिन अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। करेक्ट. तो I would say it was kind of a boon period for me, because now हम्म. I never needed to convince anybody या. to study online, ट्रू. but people were welcome. हम्म. Or because I was well versed with that, so I could handle all the हम्म. technologies very easily. हम्म. तो स्टूडेंट्स को लगता था, अरे ये तो बड़ा आसान है, सब हम्म. कुछ आराम से हो रहा है। करेक्ट. बट स्टिल वो सिर्फ वर्किंग फ्रंट था, आई वॉजंट मार्केटिंग माई सेल्फ। हम्म. ठीक है ना? हम्म. देन एज लक वुड हैव इट, वो एक दिन सिद्धार्थ का हम्म. वीडियो देखा, मुझे लगा शायद यही वो चीज थी जो मिसिंग थी, राइट. दैट मिसिंग लिंक। या. तो ये चीज सीखनी चाहिए। हम्म. तो बस उनके साथ एनरोल किया, इट वाज गुड। हम्म. आपसे मुलाकात हुई, हम्म. वहां अगर वहां नहीं आता तो शायद मुलाकात नहीं होती। करेक्ट. ठीक है ना? बट उस तरह से उस जोन में, उस कम्युनिटी में और अच्छे लोग भी मिले। हम्म. सो आई कुड अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कम्युनिटी, जो उससे पहले हम्म. इट वाज मिसिंग, कि करेक्ट. भाई कम्युनिटी का क्या है, ठीक है अपना काम कर रहे हैं, करेक्ट. बट हाउ कनेक्टिंग विद पीपल हेल्प या. ईच अदर, वी कैन या. हेल्प ईच अदर, या. राइट? या. तो वो एक अच्छी लर्निंग, पॉजिटिव लर्निंग आई। हम्म. ठीक है ना? तो अब उसके बाद आई वॉज एबल टू, या हम कह सकते हैं ज्यादा अच्छा हम्म. जो है सोशल मीडिया पे करना शुरू किया। हम्म. फिर एज यू नो कि एक दिन व्हेन मिस्टर सिद्धार्थ वाज हम्म. टॉकिंग अबाउट द पॉडकास्ट, हम्म. तो वो तब तक सिर्फ दिमाग में था, राइट. एंड आई वाज हेजिटेंट, हम्म. कैसे करूंगा, क्या हम्म. होगा। बट जब वो देख लिया एक बार प्रैक्टिकली हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ मी, तो बस शुरू कर दिया। हाँ. और यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ
what my first podcast was or what I am doing today. Amazing. तो चीजें मैं यही कहूंगा कि सीखना, उससे एक चीज और दिमाग में आई जो मैं अपने हर स्टूडेंट को कहता हूँ, सीखने से कभी पीछे नहीं हटना। Powerful. जिस दिन आपने सीखना छोड़ दिया, आप स्टैग्नेंट हो गए, यू आर आउट ऑफ द मार्केट। Correct. देयर इज नो फील्ड टुडे जिसमें आपको कंसिस्टेंट लर्निंग नहीं चाहिए। और जैसे एक बार, इफ यू रिमेम्बर, तुमने मेरे को सजेस्ट किया था बस करते रहो। पता है, वो उस बात का मतलब आज समझ आता है, क्योंकि बहुत से लोग जो सोशल मीडिया पे भी जाते हैं, Correct. उनको लगता है बस हमें फॉलोअर्स चाहिए, व्यूज चाहिए, नहीं होगा तो पता नहीं क्या होगा। आज मैं ये बात कह सकता हूं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोग देख रहे हैं, Correct. हमें नहीं पता चल रहा Correct. होगा, बट वो डिजिटल फुटप्रिंट बन रहा है। Yes. People one day, when the right time comes, they will definitely connect with you, but you have to be there. Correct. कहते हैं ना, वो जैसे दुकान खोल के बैठ जाओ Yes. डेली, Yes. कस्टमर आए या ना आए, बट यू हैव टू बी देयर ऑन टाइम। ओपनिंग टाइम और क्लोजिंग टाइम फिक्स रहना चाहिए। बिल्कुल. The slowly the business will grow. Beautiful. So that is the same on social media. You have to be there so that when the person needs you, you are there. Beautiful. I love that. I'm just going to pause here because you said something very, very powerful. I'm sure you remember this, sort of like the difference between being or choosing to be farmer versus hunter, right? You heard that expression before. And like you Right. mentioned, this is something that like it was a reiteration when Siddharth talked about the, you can choose to be the, and I'm paraphrasing here, but it's like you can choose to be the farmer rather than the hunter. मतलब कि आप बस you keep going and you keep planting, you keep sort of like tilling the soil and tending your crops, so to speak. What you said is something that reminds me of another mentor of mine from many years ago. So this is like at the start of my journey. I'm talking like 2000, must have been 2004, 2005. And he had used this analogy. So Sibu had said ki, like basically open your dukan and at the same time and close it at the same time and do this day in, day out. Customers आए या ना आए ना, ये बोलने में बहुत आसान है, करने में, to use that expression, सच में फटती है. As in like you actually recognize all that you are not when you're doing this on a consistent basis, right? And we've had conversations about how it's like you'll find enough reasons to not do it. And I remember just before we went online, I was before we started the pod today, which is just 1 second now. This is the work from home. Okay. So it's like this is the stuff that's easy to talk about, but when you do it, right? Day 1, day 2, day 3, day 4, and then you keep doing it, and then this becomes part of literally becomes part of your personality. This becomes part of you, right? That, like you said, is when sooner or later, jab log ko chahiye, you will be there. Right? And I'm saying this because I've seen how you have progressed in the last, and I was sharing this with you, like we spoke in December of 22. And now we are here in December of 24, right? When you actually talk about consistency, this is what it is. That from setup to, to the tools, to the statistics, to the followers and all of that stuff, it's like जो आपको मिलना है वो मिलेगा, right? But as you said, अगर आप दुकान नहीं खोलोगे and you will not show up every day, and it's not just showing up every day and feeling grumpy, right? That you show up every day, you like पुराने ज़माने में you clean the shop, right? आपका cleaner रहेगा, that's all besides the point, but you do the cleaning, you do the puja every day.
That is actually the practice. Right. जब आप वो करने लग जाओगे, and when you keep doing that, that is when all what you're meant to be receiving, you will receive. So I mean, thank you for sort of like beautifully like bringing the journey to this point, because this is the stuff that uh, a lot of times we forget. This is the unsexy, the uncool stuff that you'll never see. भाई आप देखो ना, ये चीज करके ही सीखा है, हाँ, ठीक है। 100%. अब हम लोग कंसिस्टेंसी के बारे में बहुत बात करते हैं, राइट? बट ये बात सच है, कंसिस्टेंसी एक दिन में नहीं आएगी। Yes. और मुझे कई बार लगता है 100% कंसिस्टेंसी जैसा तो पता नहीं कुछ होता ही नहीं होता, राइट? क्योंकि ओवर द इयर्स मैं हमेशा पहले ये कहता था कि आई एम 1% जो कंसिस्टेंट नहीं है। Yes. Yes. ठीक है ना? अब मैंने कम से कम वो कहना छोड़ Yes. दिया, तो इसका मतलब मैं कुछ आगे बढ़ा, राइट? अब उसमें ये भी है कि भाई कितने दिन कंसिस्टेंट हूं। पहले होता था कि हल्का सा कुछ हो जाए तो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई, राइट? और अब यह है कि आई मेक इट अ पॉइंट कि चीजें सही चले। राहुल, राहुल, Okay, we're back. Thank you for that, and thank you for waiting. what happened? Internet. Anyway, we're back. So that was a really powerful Yeah. point. If you could just repeat that last part, just as a link, and I'll Yeah. come back. I was talking about consistency. Right? Yeah, right. तो ठीक है, there was a time when I said कि I used to say कि मैं consistent नहीं हूँ, ठीक है ना? And you very well know that I shared it with you also. But आज भी though I feel that I work with more consistency, ठीक है ना? लेकिन वो कंसिस्टेंसी की भी आई बिलीव स्टेजेस होती हैं। करेक्ट। एक होता है आप नॉर्मल डेज में कंसिस्टेंट हैं, फिर हल्का सा कुछ हो गया तो आपका रूटीन बिगड़ गया। और देयर इज 1% जो कि चाहे कुछ हो जाए वो अपना काम नहीं छोड़ रहा। और मैं यूजुअली जब ये बात करता हूँ अपने घर में भी अपने बच्चों के साथ, तो मैं बात करता हूँ थिंक अबाउट द न्यूज़पेपर इंडस्ट्री, बिकॉज माई फादर वॉज ऑल्सो यूज टू वर्क इन टाइम्स ऑफ इंडिया। तो वी वर वेरी मच अवेयर कि साल में 2 दिन ऐसे होते हैं जब न्यूज़पेपर नहीं आता, दिवाली के नेक्स्ट डे और होली के नेक्स्ट डे। बाकी 364 डेज 363 डेज आता है। और चाहे कुछ मतलब आप देखो ना, इतना बड़ा सिस्टम, इतना परफेक्ट बनाना ओवर द इयर्स, नाउ दैट इज व्हाट आई कॉल कंसिस्टेंसी। करेक्ट। ठीक है ना? तो उस लेवल की कंसिस्टेंसी आने में तो शायद अभी भी बहुत वक्त है, बट यस आई एम ऑन द राइट ट्रैक, आई एम श्योर ऑफ दैट। तो बस वो काम करते रहना है कि आपको लगे कि आप ट्रैक पे सही हो। नाइस।
तो एवरीथिंग इज विल इवेंचुअली फॉल इन प्लेस। और फिर उसमें मैंने देखा है कि यू नेवर नीड टू से दैट कि मेरे पास बहुत ज्यादा काम है। आप फिट इन कर लेते हो हर तरह का काम, और काम चलता रहता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। Yeah. तो उसको मैं सही मायने में कंसिस्टेंसी कहूंगा। Nice. So let's sort of do a little bit of time travel. If you go back in time, what would you say now that you know what you do today and you're fully, sort of like क्या बोलते हैं इसको, you're future ready in that sense कि technology जो चाहते थे 2018 में, which is like 6 years ago, now you're at a point where you know a lot more, you are applying a lot more, and you're developing it as we go. AI तो आ ही गया है, so one way or the other वो तो रहेगा, right? In बिल्कुल whatever form, whether that is in राइट। helping you, create content, or tomorrow there'll be, आज के ज़माने में बोलते हैं agents है, तो there will be things हाँ जो आप चाहते थे actually in 2018, there will be things sort of like what we would have seen in 20, you would have seen it in 22 as well, which was like the web hooks, right? तो वो जो है आज ऑटोमेशन के तौर पे हो चुका है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। हाँ 6 राइट। years में वो हम लोग बात कर रहे हैं, बैक एंड में सब वो systems they're talking to each other, that's just going to be natural, normal हो जाएगा, right? But if you go back in time, uh, like what would you say are like maybe 2 or 3 stories that come to your mind that really like have shaped you as a person, कि आप जो हो आज, it's like there are these 2 3, जैसे बोलते हो ना, seminal moments कि ये हुए इसलिए मैं आज ऐसा हूँ, this is my philosophy today. Obviously 2 years बाद, 2 साल बाद जब हम लोग बात करेंगे, when we sort of like reflect back कि remember you had come 2 years ago, at that point you talked about that, this is who you are today, and there would be some stories that you may remember from these 2 years or from way back. But आज के ज़माने में, like at this point when you reflect back over the years, what would you say are these 2 or 3 stories that stand out कि हाँ यार ये हुआ इसलिए मैं हूँ आज? ओके तो जैसे मैंने कहा कि जो मेरा करियर कंसल्टेंसी वाला जर्नी था, ठीक है ना, मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी। बट व्हेन आई वाज इनटू द एजुकेशन सेक्टर आई गॉट अ चांस टू मीट विद स्टूडेंट्स, तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, या किस तरह से बच्चों के मन में डाउट्स रहते हैं, और व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ दोज डाउट्स। ठीक है, तो मैंने करियर कंसल्टेंसी को ज़्यादा सीरियसली लेना शुरू किया, राइट। तो दैट अब व्हेन आई वाज इन स्कूल और कॉलेज, कहीं दूर दूर तक दिमाग में नहीं था कि मैं करियर कंसल्टेंट बनूंगा। तो इट जस्ट हैपेंड। तो आज मैं इस बात को भी जब कहता हूं अपने स्टूडेंट्स के साथ कि ठीक है, आई एम देयर टू गाइड यू टू टेक अप अ पर्टिकुलर करियर, बट दैट डज नॉट मीन कि अब जिंदगी भर वही करना है। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि यू नेवर नो फ्यूचर में आपके सामने क्या अपॉर्चुनिटी आएगी, एंड यू वुड लव दैट मोर। ट्रू। क्योंकि आज आप देखो ना, व्हेन वी वर इन स्कूल कंप्यूटर्स तो थे नहीं, ट्रू। क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट द बिल्कुल 90s, इन बाय 80s, 80s, या तब तो कंप्यूटर्स थे ही नहीं। करेक्ट। ठीक है ना, आज हम सारा काम कंप्यूटर्स पे कर रहे हैं, कि पूरे दिन उसी पे ही बैठे होते हैं। तो वो सीखा ना, वो चेंज आया। या ठीक है, या फिजिकल दुकान से हम वर्चुअल दुकान में आ गए, या ट्रू। दैट इज अ ह्यूज चेंज। ठीक है, मुझे याद है व्हेन इन इट इज अराउंड 92, जब मैं यूएस फोन लगाता था, हाँ, आई यूज टू पे 1 रुपी पर सेकेंड। वाओ। तो 3 मिनट की कॉल, या 180 रुपए लग गए, तो लगता था ये क्या हो गया। ट्रू ट्रू। ठीक है ना, आज आप दुनिया में कहीं भी बात करो, इट्स काइंड ऑफ फ्री। तो दैट इज द टेक्नोलॉजिकल चेंज। चीजें आसान हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, उस दौर पे भी गए। फिर जो
मैंने कहा कि मुझे लगा कि जो मेरे वीडियोस या जो कंटेंट मैं बनाता हूँ उनको मैं टीनेजर्स के साथ रिलेटेबल करने की कोशिश करता हूँ। उसका शायद एक कारण ये भी है कि मैं जब भी न्यूज़पेपर में ये पढ़ता हूँ ना, इस बच्चे ने ये कुछ कर लिया, इट हर्ट्स। हर बार कुछ टूटता है। Yeah. और बीइंग अ पेरेंट, मुझे आज इस बात का महत्व पता है कि बच्चों के साथ कुछ होता है तो पेरेंट्स के ऊपर क्या बीतती है। तो और तो मैं चाहता हूं कि ये चीजें ना हो। और सोशल मीडिया पे जब ये देखा कि सोशल मीडिया पे आप दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकते हो, तो मुझे लगता है कि अगर मैं उन बच्चों तक पहुंच जाऊं तो माय जॉब इज डन। Nice. तो और मैं, चाहे वो मुझसे कनेक्ट करें या अपने आसपास कोई भी काउंसलर हो उससे कनेक्ट करें, अगर उनके मन में ये थॉट मैं डालने में कामयाब हो जाऊं कि भैया पूछो, प्लीज आस्क, तो माई जॉब इज डन। Beautiful. चाहे वो मेरे तक ना भी कनेक्ट कर पाए, बट कहीं पे उनके अंदर वो थॉट डल गया, तो माई जॉब इज डन। तो वो एक, मुझे लगता है कि शायद आई एम एबल टू, वो जो थॉट प्रोसेस होता है मेरी काउंसलिंग में, वो उन चीजों से आए। Do you remember that one moment when you're like, this is what I'm meant to do? Let's talk about it in the context of career counseling first. कि वो जब क्लिक हुआ कि अरे हाँ, I'm meant to do this. यार एक्चुअली दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू से, ठीक है ना, क्योंकि मैंने हमेशा वही किया जो मुझे अच्छा लग रहा है। Correct. आज भी मैं वही कर रहा हूं। तो लाइफ इज काइंड ऑफ जस्ट हैपेंड। Interesting. तो मैं इसीलिए ये कहता हूँ कि हमें नहीं पता ना, मुझे ये भी नहीं पता आने वाले समय Of में मैं course, क्या of कर course, रहा of हूँगा। course, of course. ठीक है ना, पॉडकास्टिंग तो कहीं दूर दूर तक नहीं थी। और आज जब मैं वो देखता हूँ कि अच्छा, पीपल ऑफ 52 कंट्रीज आर लिसनिंग टू माय पॉडकास्ट, तो कहा वाह, मैंने ये भी कर दिया। Nice. और इवन इफ जब मैं फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, अपने एक्सटेंडेड फैमिली में मिलता हूँ, एंड व्हेन दे टेल मी कि भाई हमने सुना था, बड़ा अच्छा लगा, तो चलो, Nice. थैंक यू, अच्छा लगता है सुन के। तारीफ किसको नहीं अच्छी लगती, बिल्कुल बिल्कुल. तो हमें भी अच्छी लगती है। Nice. तो ये है। और कभी पुराने स्टूडेंट्स, मतलब वो स्टूडेंट्स भी जिनको शायद मैं 91 में पढ़ाया था, ठीक है, वो आज भी कनेक्ट कर लेते हैं कि अच्छा सर, हमने आपका देखा तो सोचा क्या चलो बात अब है. आपसे बात करते हैं। Superb. तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग। तो मुझे लगता है जैसे मेरे इस काम से मेरी फैमिली बढ़ रही है। आई एम लविंग इट। Nice. Awesome. So let's shift gears because I love this. Okay. Um, it actually is a reflection of who you are. Meaning, for some people, there's a very clear, मुझे ये करना है, so many subscribers or whatever, right? Like, as you said, these are just things that have sort of just happened by the way. जैसे बोलते हैं ना, by the by, कि हो गया. And it just वो बढ़ते गया. And then you have moments like this where you kind of, somebody will tell you, अच्छा, हमने आपका ये देखा. Or nowadays, of course, because of notifications and things like that, we'll know, right? Like, okay, so many subscribers or whatever. Yeah. Your approach is a little different, which is what makes you feel young at heart, right? And that is what, जैसे बोलते हैं ना कि when students see that in you, that's what they relate to. Na ki, it's like talking to a college professor or somebody who's going to talk at them. Right? That's a big difference. So, like I said, we'll shift gears because you briefly talked about it, when you were sort of taking us down history to get to the present. And you talked about community, right? And I'm curious to know, like, what are your thoughts on community? That's so there are two parts to it. We'll maybe start with this, and then I'll ask you the second part after this. Okay. So, what are your thoughts on community, Kapil Bhai? और देखिए, कम्युनिटी के मायने सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है।
मैं स्टूडेंट्स के बीच में रहता हूँ, हम्म, तो मैं ये चाहता हूँ कि वो आए उसमें, ठीक है। अब वो स्टूडेंट्स अलग अलग स्टेज पे उस कम्युनिटी में एंटर करते हैं, हम्म, ठीक है। तो जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरा फर्स्ट जो कम्युनिटी की पावर का अंदाजा हम्म, मुझे तब हुआ जब मैंने मिस्टर सिद्धार्थ को ज्वाइन किया, हम्म, राइट। हम्म, पहले हम उसको इतना फॉर्मली नहीं बोलते थे, ठीक है, इन जनरल बात करते थे, बट हम्म, एज अ फॉर्मल ब्यूटी इज कि जैसे हम कहते हैं ना, ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल, वो अकेला नहीं रह बिल्कुल सकता। बिल्कुल। तो कम्युनिटी मेरे एम को पूरी तरह से सेटिस्फाई करती है कि भाई लोग उसमें आए, हम्म, आपस में बात करें, अपने डाउट्स दूर करें हम्म, और ग्रो करें। क्या बात है, वेरी नाइस। और कम्युनिटी में मैंने देखा है लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, हम्म, लेकिन हमें पूछना तो पड़ेगा ना, हम्म, किसी को सपने नहीं आएंगे। हम्म, और जब उसमें लोग बढ़ जाते हैं हम्म, तो कोई पूछेगा, कोई ना कोई, इतने सारे लोगों में कोई तो रिप्लाई करेगा। हम्म, बट अगर आप पूछोगे ही नहीं तो लोग करेक्ट, रिप्लाई कैसे करेंगे? बिल्कुल। तो कई बार मैंने देखा है कि कम्युनिटी से ना लोगों को पूछना भी आ जाता है, हम्म, बिकॉज दे सी अदर पीपल आस्किंग, करेक्ट, सो दे गेट, अच्छा हेजिटेट करने की जरूरत नहीं हम्म, है, पीपल डू आस्क, तो करेक्ट, मैं भी पूछ लेता हूँ। वेरी नाइस। हो सकता है शुरुआत में वो पूछे ना, हम्म, बट आंसर करे किसी और के हम्म, लिए, बट व्हेन दैट पर्सन नीड्स इट, दैट पर्सन विल आल्सो नॉट हेजिटेट टू नाइस। आस्क। तो आई वुड से दैट इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ community, हम्म, having a community. हम्म। So now comes the second part. So this is what you have received. This is what you have observed and you have received as being part of community. What, like what phase are you in, or what stage are you in terms of building your community? Because I know there are a couple of activities that you've been doing. One of them is, of course, you started a newsletter. So things like this that you're doing with your community, right? Um, like if we were to look in, like if we had that sort of view into your community, what is it? What are some of the things that you're currently doing, and what are some of your plans, let's say, for the new year? देखिए, व्हाट माय एम इज, जैसे स्टडी अब्रॉड की हाँ. बात करते हैं, ठीक है ना। हम्म, अब जब बच्चे बाहर जाते हैं तो इट इज़ वेरी नेचुरल, पेरेंट्स को लगता है पता नहीं कैसे क्या हम्म, होगा, ठीक है ना, ये अपना कैसे हम्म, ख्याल रखेगा। सो वन एम इज फॉर माई स्टडी अब्रॉड कम्युनिटी की अगर मैं बात हम्म, करूं, कि इट इज़ नॉट लाइक कि मैंने एडमिशन करा दिया हम्म, तो आई एम सेइंग माई जॉब एंड्स। हम्म, मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि स्टूडेंट्स स्टिल रिमेन हम्म, पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। हम्म, आज हो सकता है वो बाहर जा रहे हैं, दे नीड हेल्प, हम्म, बट देयर विल कम अ टाइम व्हेन दे आर वेल सेटल्ड या और कोई नए स्टूडेंट्स बिल्कुल. आएंगे, सो दे कैन एक्सटेंड अ हेल्पिंग हैंड टू हम्म, देम। कम से कम ये हो कि भाई इनिशियल, यूजुअली मैंने देखा है कि फर्स्ट 6 मंथ्स में ही हम्म, इंसान को थोड़ी सी स्ट्रेस रहता है, हम्म, नई जगह करेक्ट, है, नए रूल्स एंड करेक्ट, रेगुलेशंस हैं। अगर उस समय कोई हैंड होल्डिंग हो जाए, वैसे तो थैंक्स टू द यूनिवर्सिटीज ऑल्सो अब हम्म, वहाँ भी बड़ी करेक्ट, प्रोग्राम्स शुरू हो गए हैं, करेक्ट, जो, एंड दैट्स अ ब्यूटिफुल इनिशिएटिव आई वुड हम्म, से, जो खास तौर पे नए स्टूडेंट को पता चलता है करेक्ट, उसकी क्या वैल्यू है, करेक्ट, ठीक है ना। तो एक तो द स्टूडेंट इज इन द राइट हैंड्स, कोई गलत काम नहीं होता, हम्म, कोई गलत डिसीजन नहीं हम्म, होता उस समय, एंड इवन पेरेंट्स आर रिलैक्स्ड। हम्म, एंड ऑफ कोर्स थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, कभी भी बात बिल्कुल, कर सकते हो बिल्कुल, आज के समय हाँ, में आप। बट यस, दैट कम्युनिटी, आई बिलीव इन द नियर फ्यूचर विल बी अ ग्रेट वन हम्म, टू हेल्प ईच अदर। हम्म, तो दैट इज माय एम कि उसको, अभी वो, उसकी इतनी स्पीड नहीं है हम्म, बढ़ने की, बिकॉज जब तक लोगों को उसकी पूरी तरह से वैल्यू नहीं समझ आएगी तो हम्म, दे माइट बी अ हेजिटेंट। बट आई नो, लगा रहूंगा तो हो जाएगा, बिल्कुल, पीपल विल डेफिनेटली रियलाइज हम्म, इट्स इम्पोर्टेंस। nice, awesome. So you were earlier talking about studying, learning. In fact, not even just studying, but learning. So 2022 was when we met, and you were in your process of learning digital marketing.
whether it was recording a video. Could you share that story of how you finally started recording? I was one person who was very much hesitant. ठीक है, मैं पढ़ा लेता था ऑनलाइन, बट जब मुझे कोई ये कहता था रिकॉर्ड कर लेते हैं वीडियो, आई ऑलवेज डेवलप्ड कोल्ड फीट. और मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, माई सन केम टू माई रेस्क्यू. आई वेटेड गुड 15 years फॉर रिकॉर्डिंग माई फर्स्ट वीडियो. और वो भी तब हुआ जब माई सन सेड आप सिर्फ पढ़ाओ, आई विल मैनेज द टेक्नोलॉजी. वाइज मैन. और द ट्रूथ इज कि आज मैं यही बात औरों को कहता हूँ कि भाई सिर्फ बना दो वीडियो. बिकॉज आई सॉ, जहां मैंने 3-4 वीडियो बना दिए यूजिंग हिज हेल्प, उसके बाद वीडियोस की क्वालिटी अपने आप इंप्रूव होनी शुरू हो गई. फिर खुद ही आइडिया आने लगते हैं. लेकिन अगर आप शुरू ही नहीं करेंगे, जैसे वो सिद्धार्थ कहते हैं ना कि वर्जन 1 इज ऑलवेज बेटर देन वर्जन नन, दैट इज सो एप्ट. हम वो पहली स्टेप लेने से डर रहे होते हैं. और मैं तो खुद अपना ही एग्जांपल देता हूँ. भाई मैंने अगर 15 साल वेस्ट किया, आपको क्यों करने हैं? आप उस एक्सपीरियंस से बेनिफिट लो और बस शुरू हो जाओ. एंड दैट हेल्प्स. एंड इफ यू रिमेंबर, जो FBR में जब वो हॉल के अंदर लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग कराते हैं, तो इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस. हम घर में या अपने स्टूडियो ढूंढ रहे होते हैं, करेक्ट. पिन ड्रॉप साइलेंस हो, क्या हो, एंड वी कीप ऑन पोस्टपोनिंग द थिंग, बट इट एक्चुअली डज नॉट मैटर. आज हम ये बात कह सकते हैं कि ठीक है, अभी इंटरनेट ब्रेक हुआ, किसी जमाने में शायद हम परेशान हो जाते. In fact, just full disclosure, and this is just a reminder that no matter how much we try and create the environment and we have all the best of technology. Now I'll only know at the end of this recording, somewhere I think about 20 minutes in, I realized that a lot of these are like click buttons. Not clickbait, click buttons. So the mic is actually not this mic, it's the laptop mic. I don't know how much of a difference it's going to make or not, but I can't switch now because this technology is recording in one format. Right. Switch over किया तो वो नहीं होगा. I don't know if it's going to record or not in, but this is what I'm saying, that as you said, because you're doing it more than once, you realize that it's not always going to be perfect. Right. And that is really the whole point of, being able to show up, being able to be consistent, because this is not the first or the last time that you're doing this recording or whatever. अब तो मैं ये कहता हूं कि परफेक्ट होना भी नहीं चाहिए एक्चुअली, क्योंकि जिस दिन मन में ये आ गया कि दिस इज परफेक्ट, विल स्टॉप इम्प्रूविंग. Right, like that the concept of ki acha, I'm sure you may have even we've all sometimes been kya bolte hain usko, not victims, but we've fallen into that trap of the perfection, which is like at one point you'd have seen ghar baithe baithe people are wearing coats and whatever, right? हमने शायद किया भी होगा या नहीं भी किया होगा, at least you would have thought about it. But this is the whole point, that we no longer are looking for that perfection. What we're looking for is the application, like do, right? And I myself wasted so many years क्योंकि मैं वीडियो क्यों नहीं बना पाता था. यार वो भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, वीडियो में ये चीज भी होनी चाहिए. अब ये चीज तो करनी आती नहीं तो बनाया ही नहीं. Correct. Very true. So, like I said, these pods, which the idea came to me somewhere towards the end of last year. I mean, of course, I've been listening to podcasts for quite a while now. मेरी तो journey 2015, 2016 से शुरू हुई थी, where there were more podcasts that were being accessible online. And I've always been very blessed to find some really amazing, like one of my earliest was Tim Ferriss, which helped me. And of course, it's sort of like seeded that idea of
at some Hmm. point someday karenge kind of a thing. And over this year, today we are at episode number 36 of this year. So in a way, just to put this into context, I had set myself initially the idea of is saal 100 karenge, right? So basically, it's like Wow. 50 weeks, 52 weeks, 50 weeks into हाँ. two episodes a week. हो गए 100. That's the simple way of breaking it down. Right. And we are at 36. So technically, अगर हम स्कूल में होते तो at this point मुझे 36 marks मिला है on 100. Right? That's one way of looking at it. हाँ. Right? Later today, I have one more. So let's say 37 हो गए. Right? And then we kind of like round out the year. Yeah. Right. Right. Christmas here next week, and I will be traveling, so I'm not shooting. But this is really the whole point, that 36 is better than nothing. And Right. what is the ripple effect going to be? Nobody knows, right? The key is that आपने decide कर लिया कि you want to reach out, connect with people, help them share their stories out in the world, because this is something like I actually came across this 2 days ago. Today is Wednesday, right? 2 days ago, I had done a one-to-one with somebody, and I was part of Kartika's community. This is like 2-3 years ago. I had just randomly shared some video, us time pe, and that video was seen by this person. At that point, we both were students, and cut to now 3 years later, 2 दिन पहले, where she's telling me that वो वीडियो आपको शायद याद नहीं है, आपने एक वीडियो शेयर किया था. Because of that video, I did something which was out of my comfort zone, and I recorded a video and I shared it in the group. Okay. 3 साल पहले, 3 years ago, right? And this is where it's not, sometimes it is your own content. Sometimes it is, I had shared that and I had written a note about, hey, I'm listening to this, and I'm feeling like a good feeling, little knowing that what ripple that was going to have. And now 3 saal baad, here we are on a call where I'm doing a session with her, right? So I'm just saying that Wow. this is really what we mean, right? Right. वो जैसे बोलते हैं ना, बैम्बू शूट वाला स्टोरी, 5 साल के लिए कुछ नहीं होगा, फिर suddenly now some of us are 5-year bamboos, some of us are 10-year bamboos, some of us are 20-year bamboos. Doesn't matter. No. Meaning that आपका, जैसे बोलते हैं ना, आपका काम सिर्फ जीना है, so जियो, right? जियो. Like go out, make that difference, make that video, and you don't know where it's going to go and how it's going to impact people. And that's why, like, it's a beautiful way to sort of reach towards the end of this year and this project. And of course, we will continue on into the new year. That this is why we do what we do, and this is, for me, this is why this is the opportunity to for people to get to know how learning continues. And that was where I kind of started for a moment before, which is you're still learning, right? And you mentioned something briefly before we began, and I think you started this part which I'm about to ask you about a year ago, right? We today we call it graphotherapy, correct? Yeah. So could you share a little bit about like what made you find this? What made you kind of tune into this? And of course, how the journey has been and how you're actually applying it in what you're doing. Okay. See, some time back, I had no clue about graphology, right? And you also know about Success Gyan that I got a invite to attend one of the webinars. So it was done by Mr. Imran Beg, the graphologist. And somehow it just clicked कि शायद I was looking for such a tool. Because मेरे दिमाग में तो हर समय स्टूडेंट्स ही चल रहे होते हैं. Correct. वही मेरा काम भी है. Correct. और मैं whenever I'm interacting with parents, तो एक जनरल समस्या होती है, बच्चा डिसिप्लिन नहीं है, फोकस नहीं कर रहा होता, या पढ़ाई को लेके बड़े चिंतित होते हैं. बट फ्रॉम द स्टूडेंट पर्सपेक्टिव अगर हम देखें, भाई मतलब
एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट फिर भी हम कहेंगे हर स्टूडेंट अच्छा स्कोर करना Correct. चाहता है, ठीक है ना। Right. अब जब उसका रिजल्ट आता है और वो अगर खराब है रिजल्ट, तो टीचर्स ने डांट दिया और कह दिया भैया पढ़ते नहीं हो तुम। Mm. घर गए, पेरेंट्स ने देखा, Mm. बस हर समय खेलते रहो आप, Mm. पढ़ना नहीं है आपको। Right. अब मैं उस स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, Mm. तो वो सोच रहा है यार पढ़ा तो था, Mm. True. नंबर नहीं, पता नहीं क्यों नहीं आए, Correct. बट नोबडी इज एड्रेसिंग द प्रॉब्लम। Mm. तो अपनी इस फील्ड में आने के बाद मैं उस प्रॉब्लम को एड्रेस कर पा रहा था, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर पा रहा था स्टूडेंट से, Mm. बट एक सोल्यूशन चाहिए ना Yeah. कि उसका वो Yeah. थॉट प्रोसेस में कैसे चेंज करूं। Correct. तो व्हेन आई एंटर्ड इनटू दिस ग्राफोलॉजी, क्योंकि इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक एनालिसिस Mm. और थेरेपी। Mm. तो एनालिसिस इज लाइक डायग्नोस्टिक Mm. टेस्ट और ट्रीटमेंट आपका थेरेपी हो गया। Mm. तो आप ये मान लो कि थ्रू दैट थेरेपी मैं उन ट्रेट्स को डेवलप कर पा रहा Nice. हूं बच्चों में। तो Nice. दो देर आर डिफरेंट यूजेस ऑफ Mm. दिस साइंस, Mm. ठीक है ना, Mm. बट क्योंकि मैं स्टूडेंट्स के साथ कनेक्टेड हूं तो मैं ज्यादा वो कर रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। क्योंकि अब जैसे मान लीजिए कोई कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहता है, हम्म। अब डिग्री उसने ले ली, हम्म। बट हैविंग अ डिग्री इज नॉट अ करेक्ट गारंटी ऑफ सक्सेस इन द करेक्ट फील्ड। बिल्कुल। तो उसके लिए कुछ लाइफ स्किल्स चाहिए, कुछ डिसिप्लिन चाहिए, कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स चाहिए। अब वो अगर मिसिंग है हम्म। तो कितनी कोई भी डिग्री हो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हम्म। बट दैट साइंस हैज गिवन मी अ पावर टू डेवलप दोज ट्रेट्स इन अ पर्सन। हम्म। नाइस। और द ब्यूटी इज, जो एक सबसे बड़ा आई ओपनर था मुझे जब मैंने इस साइंस को हम्म। समझा, वो ये था कि दो वी डोंट से वी आर डॉक्टर्स, हम्म। ठीक है, हम्म। ऑब्वियसली डॉक्टर का काम तो हम्म। डॉक्टर ही करेगा, बट कहीं ना कहीं हम ये जान पाते हैं कि कोई डिजीज अगर हो रहा है तो वो क्यों हो रही, हम्म। गोइंग टू द सोर्स ऑफ दैट करेक्ट। डिजीज, व्हाई इट इज। हम्म। जैसे कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो बार बार रिकर करती हैं, हम्म। तो आप डॉक्टर के पास गए, उसने ट्रीट कर दिया, कुछ दिन बाद वो फेर हो गई, हम्म। ठीक है ना, तो वो क्यों हो रही। राइट। तो आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड द सोर्स नाइस। विद दैट, हम्म। और अगर वो चीज ठीक हो जाए हम्म। तो वो प्रॉब्लम दोबारा नहीं होगी। हम्म। और कुछ केसेस में वो साइंस हमें प्रिवेंशन का हेल्प मौका देती है हम्म। कि, क्योंकि हैंडराइटिंग, हम कहते हैं हैंडराइटिंग इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर हम्म। पर्सनालिटी। तो जो भी हमारे अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ हम्म। के, दे आर विजिबल इन दैट, इन आवर हैंडराइटिंग। हम्म। तो अगर हेल्थ डिटीरियोरेट होने वाली है हम्म। तो वो पहले हैंडराइटिंग में शो होना शुरू हो जाता है। करेक्ट। तो अगर हम वहीं पे उसको ठीक कर लें हम्म। तो एक प्रिवेंशन हो गया। नाइस। क्योंकि डॉक्टर तो जब ठीक करेगा जब आपको प्रॉब्लम हो गई है। हम्म। तो अगर हम कुछ चीजों को प्रिवेंट, और ये तो सब कहते हैं ना प्रिवेंशन इज हम्म। बेटर देन क्योर, हम्म। तो वी आर एबल टू प्रिवेंट इट। तो हम डॉक्टर्स नहीं है, बट यस इट्स अ साइंस ऑफ माइंड एम्पावरमेंट। हम्म। और मुझे ये भी लगा, जैसे मैं अपने आप को, जैसे मेडिटेशन इट्स अ ब्यूटिफुल या टूल, लेकिन मैं नहीं कर पाता था, करेक्ट आज भी नहीं कर पाता, करेक्ट। ठीक है। द मोमेंट आई क्लोज माई आईज, दुनिया भर की चीजें मेरे दिमाग में घूमने लगती हैं, आई एम नॉट एबल टू कंसंट्रेट। तो मुझे लगा कि वो, जस्ट आई स्पेंड अराउंड 20 minutes ऑन अ डेली बेसिस writing that one राइट। page, and that is also kind of meditation only. It is giving me the same result what meditation would have given. तो मुझे लगता है कि जो लोग मेरे जैसे हैं जो मेडिटेशन नहीं कर पाते, वो भैया एक पेज लिख लो। तो आप, देयर कैन बी डिफरेंट टूल्स फॉर 100%। मेनी थिंग्स। 100%। तो बस ये है कि मैंने इस टूल को समझ लिया और अब मैं इसको यूज कर रहा हूँ। नाइस।
तो दैट इज अ ह्यूज लर्निंग कि अचानक से वो मेरे सामने आया एंड आई पिक्ड इट अप और आज मैं उसको यूज कर रहा हूँ। तो उसने मेरे अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजेस लाए। हम ये नहीं कह सकते कोई एक चीज कौन सा चेंज लाती है, बट हम लगातार कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर आता रहता है। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट, और आई एम एंजॉयिंग दैट। मुझे लगता है आई एम able to help more people because of that. Yeah, and I'm sure you're seeing it actually. सिर्फ क्या बोलते हैं, it's not just a feeling, but you're actually able to see people have that transformation or that change in their attitude or their mindset or beliefs. आप ये मान लो as early as in 7 days of writing, the person is able to sense the change. Nice. Good. आप सोचो ना कि एक मेरे साथ हुआ ये, मैं एक सेशन में था, आई डिडंट सी द हैंड राइटिंग बट आई न्यू द एलिमेंट ऑफ दैट पर्सन। बात करते करते मैंने कहा कि आप कुछ ऐसा करते हो क्या? कहते हाँ। मैंने कहा अगर ठीक होना है तो ये छोड़ दो आदत। मतलब दैट इज द पावर कि वो हम लगातार वैलिडेट कर रहे होते हैं। ये सामने ऐसे बात कर रहा है तो क्या ये वाली प्रॉब्लम तो नहीं है? तो मुझे लगता है आई एम एबल टू अंडरस्टैंड पीपल मोर बाय दिस साइंस। कि कभी कभी जैसे पास्ट में जजमेंटल हो जाते हैं, वो आदत छूट गई। Nice. अब ठीक है, सामने वाला जो बात कर रहा है तो अब दिमाग ये चलता है वेयर इज ही कमिंग फ्रॉम, या ये बात ये कह रहा है क्यों कह रहा है, व्हाट इज द, इंस्टेड ऑफ जस्ट रिप्लाइंग, तो सुपरफिशियल नहीं हो। तो दैट हैज इम्प्रूव्ड मी एज अ पर्सन। Amazing. So, two things before we start to wrap for now. Of course, we will be back for an update. This is something that I intend to do. It's a good way for even for listeners to, and for our viewers to see that evolution with time. So, you've obviously set certain things for yourself in the new year, and it'll be interesting to see how where things got to in a year or 2 years from now. Um, as far as like a sort of like a part two with that sort of distance of time. Um, so is there something that you want to share with people? Meaning, one is if you have a course or if there's something that you're doing at present, because obviously your Linktree link is there; it'll be accessible to people. But if there's something that you want to talk about, industry में क्या बोलते हैं उसको, like if there's something that you want to plug, but basically it's like for people to be able to reach out to you and benefit from your years of expertise that you've been building. Is there something that you want to sort of like tell them about? Yeah, I would say कि I think I'm the only consultant in India जो स्टडी अब्रॉड को भी कोचिंग फॉर्मेट में दे रहा है। रीजन बीइंग कि मैं कहता हूं कि पहले उस तरफ जाने से पहले अपने आप को समझो, अंडरस्टैंड द प्रोसेस। तब उसके बाद अगर किसी स्टूडेंट को लगता है वो खुद करना चाहता है, गो हेड, किसी कंसल्टेंट से मिलना चाहता है, तो एटलीस्ट अ पर्सन शुड बी रेडी टू आस्क द राइट क्वेश्चंस सो दैट यू डोंट गेट स्कैम्ड। आपको पता होना चाहिए, बिकॉज देयर सो मेनी पीपल इन द इंडस्ट्री। ठीक है ना? अब एज अ काउंसलर मैं कह सकता हूँ, अगर आप मेरे से पूछो मैं कैसा बनना चाहता हूँ, तो मैं कहूंगा भाई आई वांट कि किसी के मन में कभी भी आए कि मुझे कंसल्टेंसी लेनी है, तो दे शुड ओनली बी वन नेम, कपिल गुप्ता। उनसे बात करो, ही इज द राइट गाय। वो ठीक है, दैट इज माई थॉट प्रोसेस। ठीक है ना? मैं ऐसा चाहता हूँ। बट कम से कम हम कहीं भी जाते हैं, मुझसे भी कोई मिले, उसे पता तो होना चाहिए ना उसे क्या पूछना है। Right. ठीक है? ओनली देन द कॉन्वर्सेशन विल बी राइट, इट विल रीच अ फ्रूटफुल कंक्लूजन। तो
बेसिकली इट्स अ शॉर्ट कोर्स जो स्टूडेंट्स ले सकते हैं, ठीक है, सो दैट दे नो ईच एंड एवरी स्टेप दैट नीड्स टू बी डन फ्रॉम द टाइम, फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग व्हाट प्रोग्राम टू स्टडी अप टिल फ्लाइंग टू अब्रॉड, Nice. और वहां पे भी क्या करना है, Correct. ठीक है ना। और उस बीच में दे विल डेफिनेटली गेट अपॉर्चुनिटीज टू कनेक्ट विद मी वन टू वन आल्सो, so that is Nice. how I've designed it. Amazing. So, like I said, they at this point we've not yet, I think, started to do the show notes, but definitely you will have links to how you can reach Kapil Bhai and on his link tree, because it's a link tree. As and when you're updating, programs, of course, depending on when people are watching this, they will be able to reach out to you and ask you questions. Also. Get access to the latest downloads of your podcast, amongst many other things. So, firstly, thank you for taking the time to share your story, your journey, and I'm sure this will inspire not only students but also budding or um, healers, coaches, people who are on the journey. And like you rightly said, I'm saying this also in context because I know you've attended some of my sessions and it was quite a struggle and a juggle. But that's the whole point, that there is some form of healing, some form of tapping within that is available to all of us, right? Sometimes you will sort of like people will tell you, hey, why don't you do this? Whether it's yoga, hypnosis, jo bhi hai. Sometimes it can be from the most sort of unplanned sources. Like you didn't go out seeking. पुराने जमाने में उसको graphology बोलते थे, and now of course it's graphotherapy. That's like the new, and it's good that they're seeing it in all its possibilities. That eventually you're finding something that will help you go within, right? Because as healers and coaches, it's also important that we're able to do that self work. जो अपनी खुद की we're also working on ourselves, and as we're doing that we're able to be of service to others as well. So thank you for sharing your story, and I'm sure people who have, especially for those of you who reached this far, you've obviously connected to Kapil Bhai and to our story, to our pod. So keep sharing and keep connecting. And if there's somebody that you can think of who will benefit from this podcast, to share it with them. We are of course available on different formats. You will see this on YouTube. You will definitely see one version of this on Facebook, and there are many more to come. So this is the power of sharing, right? You really don't know how it's going to affect Right. somebody else's life. So with that, Even as I said in the beginning, it's always a pleasure talking to you. तो भैया मेरे को तो आप बिठा के बात करो. I always love talking to you. my pleasure as well. So this opportunity came by that I got a chance to connect with you one to one. Awesome. So I was enjoying every Awesome. moment of it. Awesome. And this is the beauty of we got to connect. Like for me, I always say that um, most often, especially because we get so busy, we don't really have as much time to connect. But this podcast is sort of like my Trojan horse. Ki, isi bahane, if you want to call it that, that we get to hang out. Of course, you and I have a slightly different equation, that we have had multiple deep conversations over the last 2 years. We've even been roommates. This is what, last year, I think. But I always say I have a rule in my life. I'm never busy for friends. मैं हमेशा समय Nice. निकालूंगा. Nice. काम तो चलेगा. Beautiful. वो होता रहेगा. Beautiful. Right. So लेकिन दोस्तों के साथ समय बिल्कुल, बिताना is बिल्कुल. very very precious. So thank you for being on our eye hypnosis life coaching journeys. Thanks And to you for inviting me. looking forward to a season 2 or a part 2 to this story, and all the many adventures that you've been on when we do connect again. And with that, of course, just a reminder to those of you who are here at this point watching this,
Firstly, a big thank you for taking the time to be here and watching this, whether you watch this live or whether you're watching this later as a recording. And of course, the intention is to do this. We do 2 recordings a week. If you like this format, there are more podcasts that you can watch on. I think at this point we are on YouTube, and definitely you will see a sharing of this on Facebook as well. You may even see a link on LinkedIn. So do watch to keep sharing as well. And having said all of that, of course, remember to live your purpose. God bless, and of Yeah. course, we will be back soon. So see you in the next one. Take care. Yeah. Take care. Take care. Bye bye. Okay. And with that, we go.